कि सलमान अकरम रजा साहब तो आपको मानते ही नहीं है। वो कहते जी मैं खुद उस पार्टी का हूँ, मुझे आप क्यों इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते? तो वो तो आपको मान ही नहीं रहे। हमारे सामने वो कैंडिडेट्स भी नहीं है जो कि आपके साथ शामिल हुए। सर हमें क्या पता, वो तो नहीं मानते आपको। सर मान लिया, आज सुबह मान लिया। Let me give a brief answer because I should conclude, sir. I don't. Let me just give a brief answer, just building on what your lordship has said. चले, मेरे तो जवाब नहीं देते हैं, चले दें हमारे। नहीं सर, मैं आपका आखिर में जवाब दूंगा। नहीं सर, नहीं मैम, बिल्कुल सर। So the short answer is. Trace the question. The short answer is. They have to go to SIC. The reason why this issue of that we are not a political party cannot be raised now, because this is not an issue which was raised at any time. Actually, this was a prayer. अगर आप देखेंगे तो जो applications और लोगों ने दी थी, उसमें एक मौलवी इकबाल हैदर थे जिन्होंने 2 petitions भी फाइल की हैं आपके सामने जो CMA के साथ लगी हुई। उन्होंने एक्चुअली इलेक्शन कमीशन से ये डिक्लेरेशन मांगा था कि इंडिपेंडेंट्स ने गलत ज्वाइन किया SIC is not a political party. So this issue is not before your reading lordship. someone else's case. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सीधा साधा। That is why the only political party which has been recognized by the election commission as a political party to which rightly independents have joined, they have admitted page 75 of their paper book is SIC. So it goes to them. Now that you're concluding, I don't want to sort of unnecessarily delay things. The question precisely is, if we were to hold that you're not a political party, where will the votes go? अब मैं इसका जवाब दे, hypothetical है, मैं इसका जवाब देता हूँ, ठीक? My answer to that is, sir, that your lordship would then have to hold that these independents did not rightly join Sunni Ittihad Council. Then what will be left of this independents? The independents still have a right to join a political party under 51. Now if that order is set aside, which is before your lordship, then we go back to when the independents have joined. Then to me the 3-day period will start again. And if your lordships hold... Rephrase the question, I think आप नहीं समझ रहे. Forget if there was an SIC. Forget it. There was no SIC. Independents are independents and there are 2 political parties. 2 political parties get and their independents share. Don't join any political party. Independents खड़े हुए हैं और 2 political parties हैं. 2 political parties ने अपना proportional representation में share ले लिया पहले कट में. Remaining seats का क्या होगा? Will it come back again to the political parties or will they remain unrepresented is the question. Sir, if they remain independent, if they are not declared any party affiliation, then they will remain vacant. That's what. Yes. They will what? They will remain vacant. Vacant. Yes. Vacant. If they remain independent. But आपने पहले शुरू में I remember you said कि house cannot be even one thing short. Sir, मैंने कहा था अगर independent. I wrote it down and asked you 2-3 times. Sir, independents, वो presumption ये था independents join कर लेंगे. उसको रिजर्व सीट्स नहीं मिल रही है, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था. बट लेट मी कंक्लूड फैसल साहब, ये ईसीपी का जो ऑर्डर है, इंप्यून ऑर्डर ईसीपी का पैराग्राफ 31 जो है आपका लास्ट पेज 33 और भी उसमें रीअलोकेशन हुई है. यही तो आपसे सवाल कर रहे हैं ना कि जो सीटें मिल चुकी थी उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में मिल चुकी थी. और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपको एसआईसी को नहीं मिलेंगी. इसको दोबारा से कोटे को रिकैलकुलेट करें आखिरी लाइन में. तो ये जो लेफ्ट ओवर जो सीटें थी ना, ये आपको दोबारा कैलकुलेशन करके दोबारा उन्होंने तकसीम दोबारा दी. यही क्वेश्चन यही यहाँ से खराबी वहीं से पैदा हुई. कैलकुलेशन कैसे लेफ्ट ओवर इसलिए रखी कि आपका क्लेम पेंडिंग था. अगर क्लेम पेंडिंग भी था नहीं, क्लेम हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया था. रिजेक्ट करके रीएलोकेशन की है. उसी वक्त ही टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए. नहीं किए हैं. किस वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर? फर्स्ट टाइम जब बाकी लोगों को दे रहे थे उतना तो जुल्म ना करें. नहीं तो मेरे सारी आपने तो कंक्लूड कर लिया. वहीं से हो रही है. बात सही है, वो पहले दे रहे थे, उन्होंने कंक्लूड कर लें. मैं कंक्लूडिंग चीफ साहब का जवाब एक सवाल रह गया, मैं अगर वो जवाब सर मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आपको परमिशन लेना होती है. नहीं सर, दूसरे जजेस से. नहीं सर प्लीज ये ना करें. नहीं करें. आप हंस के जो असैसिनेट ना करें. चलिए बताइए सर. So the reason I think there is no conflict of interest, because when you represent a political party like SIC, you are also representing all members who have now joined their party. तो उनके interest
एट द टाइम जो है इन कंफॉर्मिटी, अब आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, अब दूसरा सवाल पूछता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। सुन लीजिए जी। हर पार्टी का मंशूर है, आपकी पार्टी का मंशूर है जी है जी। इज इट आइडेंटिकल टू पीटीआई's मंशूर? नो इट्स नॉट देन सर। नहीं, आप ये ऐसी हो सकता आप जब है। बात कर रहे हैं तो फिर आप उसका पूरी चीजें सवाल की बताइए। ये बताइए, ये जो कैंडिडेट्स जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं जी, ये क्या आपके कैंडिडेट्स हैं या पीटीआई के कैंडिडेट्स? सर इलेक्शन में तो इन्होंने आप जवाब दीजिए ना। पीटीआई की एफिलिएशन फाइल की आपके थी। हैं या उनके हैं? नहीं, जब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए मैं थे तो आपसे सवाल पीटीआई। पूछ रहा हूँ ना, जब अब कि नहीं, ये आपके कैंडिडेट्स हैं या पीटीआई के? सर फिल वक्त तो दे आर पार्ट ऑफ आवर पार्टी। भाई फिल वक्त तो नहीं होता है ना, आपको जवाब देना है ना। उस वक्त तो इंडिपेंडेंट लर्नड काउंसिल इनकी इलेक्शन कमीशन ने अपने कंसाइज स्टेटमेंट फाइल जी जी। एंड दे से दैट इट इज इन योर कॉन्स्टिट्यूशन that you do not allow women and minorities to be members of your party. Is that correct? Not women, minorities. Minority. Okay. जी, वो है अडल्ट मुस्लिम। ठीक। जी Fine. जी जी। फिर आप ये उसकी सीटें नहीं चाहिए आपको माइनॉरिटी? नहीं सर, बात ये अगर है कि Constitution सर allow आप नहीं करता इससे ही अंदाजा लगा लें इलेक्शन कमीशन के में आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन अगर अलाउ नहीं करता What as now I ask an officer of this court, if that is a provision which I have not read, I would imagine someone else would point it out. Is it constitutional? As a officer of the court, I'm asking. Sir, Is your memo, क्या उसको manifesto constitutional? Sir, I don't think there is a clear answer to that. The issue is can you have a political party where you do not allow certain citizens to become a part of that party, whether that's discriminatory or not? It's not a straightforward question. No, so what is your answer? As counsel, as a senior counsel, I cannot give a answer now because it's not a simple question. You are sir. saying to exclude. Then जरा बात सुन लीजिए ना गौर से। पाकिस्तान का झंडा आपको सामने है ना जी, सफेद भी उसमें। कायदे आज़म ने क्या फरमाया था कि जो नॉन मुस्लिम की राइट्स एज सिक्योर एज अदर्स, तो आपके तो मंशूर में आपने उनको फारिग कर दिया है, तो आपके हिसाब से ये आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी नहीं है। Sir, I think there is a lot of jurisprudence on this. आपकी राय पूछ रहे हैं, आपकी Sir, मेरी Let's put it this way. मेरी पर्सनल और इंटेलेक्चुअल राय अलग हो सकती है। Let me put it this way. कौन सा फंडामेंटल राइट आपके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अफेंड हो रहा है in this whole scenario? I'm talking about now you, the Sunni Ittihad Council. कौन सा फंडामेंटल राइट in terms of reserve seats? In terms of anything. Sir, Article 17. Grievance आपका क्या? क्या आर्टिकल 17 में क्या? Article 17 says that every person Yes. has the right Yes. to join a political party. People who have joined a political Yes. party, my political party, जी. had a right to join me and to benefit from all benefits which arise out of that. Problem which is Article 15. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, the independents who joined you went to the public with a particular did the public know when they were voting that these members will be joining SEC? Because you see, जब आप लिस्ट देते हैं तो उसमें साथ लिखा होता है कि आप उसे पब्लिश भी करेंगे इलेक्शन कमीशन का। तो जो वोटर था जिसके राइट के पीछे हम सब हैं, उस वोटर के राइट्स के बारे में मुझे बताएं। सर, वो तो लिस्ट किसी की पब्लिश नहीं हुई, ना सुन्नी इत्तेहाद की हुई। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि जो वोटर था जब वो वोट डाल रहा था, उन्हें मालूम था कि जो इंडिपेंडेंट्स, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स हमारे सामने, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करेंगे, तो फिर वो फंडामेंटल राइट उनका ज्वाइन करना, तो उसका बेस जो है वो तो वोटर है। सर, लेकिन एक्सरसाइज तो वो करते हैं, एवरी सिटीजन, एवरी एमएनए, एवरी एमपीए। फैसल सदीकी, ये तो फिर वोटर को पता था कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट ने जाके विद इन 3 days ज्वाइन करनी है पॉलिटिकल पार्टी। ही वाज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। And even then, it is the right of MNA. Very valid question. It is the right of every MNA, MPA to make that choice. जब उसके प्रोपोजर और सेकेंडर थे, वो उस वक्त जब ये नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो रहे थे, उन्हें पता था कि ये इसके पास पीटीआई की एफिलिएशन की सर्टिफिकेट है, तो इसलिए उन्होंने प्रपोज किया, दूसरे ने सेकंड किया, इसीलिए इस नियत से कि ये बेशक निशान जो भी हो, लेकिन दे आर
पीटीआई एफिलेटेड कैंडिडेट, आज अगर आपको दोबारा इलेक्शन हो, एक तरफ पीटीआई के लोग खड़े हो, एक तरफ सुन्नी जात के, ये लोग आपके लोग